ਹਾਂਜੀ, तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ O ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਕੌਣਾ, OA ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ O ਹੈ, ਆਹ AB ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ AB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਡ ਬਾਰੇ। ਕੋਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਨੋਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਸੈਂਟਰ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ M ਤੇ N ਦਾ ਨੇਮ, ਇਸ MN ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਡ। MN ਇਜ਼ ਕੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਡ ਬਟ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਲਡ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਨ ਸਰਕਲ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਟਪਾਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਪਾਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨਾਂ ਟਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਨ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਡ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੋਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਹੈ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ MCQ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਆਹ ਕੋਈ AB ਆਪਣੀ ਕੀ ਕੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ M। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੂਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ M ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ M ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਐਂਗਲ AMO ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਹ M ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ M ਹੈ ਨਾ,
ये एम बन गया ए बी का मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक ये रिजल्ट भी याद रखना है, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट अपने की इंपॉर्टेंट है। ओके, कि सर्कल के सेंटर तो कोड तक कोई लाइन ड्रा करिए, उत्थे बनता परपेंडिकुलर, ठीक है। जोड़ा ये एम है, एम अपना की बन जाता मिड पॉइंट बन जाता है, ठीक है, इस तरीके का। सो हुण अपना अगला टॉपिक है सर्कल एंड टेजेंट। सर्कल एंड टेजेंट, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो टेजेंट की होंदा है, कोई सर्कल है इस तरह, तो सर्कल के आपां कोई बाहर दी बाहर एक लाइन ड्रा की है जी सर्कल में एट अ पॉइंट टच कर रही है ये उपर, ठीक है। मतलब जो कोई लाइन सर्कल में टच कर जाती है ना, वो की बन जाती है, टेजेंट बन जाती है, ठीक है। मतलब लाइन की है सर्कल में, लाइन सर्कल में टच कर जे एट अ पॉइंट, वो की होंदा अपना टेजेंट होंदा है। ओके, हुण एक होर चीज़ देखो ये कि सेंटर वो है ना उवें, हुण सेंटर तो लैके टेजेंट तक कोई लाइन आप जो ड्रा करते हैं, जिथे टेजेंट ते रेडियस दोनों मिल जाते हैं उत्थे एंगल बनता 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेजेंट ऑलवेज, ठीक है। जिथे दोनों मिल जान उत्थे एंगल बनता 90 डिग्री, ये गल भी याद रखनी, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, हुण आपां गल करते हैं खोल टेजेंट बारे कि सर्कल दे विच कोई एक पॉइंट बना रहा, इत्थों भी आपां एक टेजेंट ड्रा कर सकते हैं। हुण मान लो कोई पॉइंट आपां इत्थे रख लेने, इत्थों भी एक टेजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इत्थे रख लो, इत्थों टेजेंट ड्रा हो जाऊगा, एक इत्थे रख लो, इत्थे भी टेजेंट ड्रा हो जाऊगा। तो हुण आपां उवें जिवें आपां डायमीटर की गल कीती होवे ना, हुण आपां ये भी कह सकते हैं हाउ मैनी टेजेंट हैव अ सर्कल, सर्कल के कोल किन्ने टेजेंट होंदे आ। तो सेम वो भी जिन्ने मर्जी टेजेंट ड्रा कर लो, इनफाइनाइट मैनी टेजेंट, ठीक है। सर्कल के कोल जिन्ने मर्जी टेजेंट ड्रा कर सकते हैं, बट ये कंडीशन एक सर्कल है, आ एक पॉइंट है, एक पॉइंट से आप एक ही टेजेंट ड्रा कर सकते हैं, वन टेजेंट ड्रा एट अ पॉइंट। ओके, ठीक है ना, कि सर्कल के कोल टेजेंट तो बहुत सारे होंगे है, बट एक पॉइंट से एक ही टेजेंट ड्रा किया जाता है, ठीक है। तो जिथे रेडियस तो टेजेंट दोनों मिल जान उत्थे की बनता एंगल बनता 90 डिग्री, जिसके बारे में पहले भी गल कर चुके हैं। एक होर रिजल्ट देखो, आप कॉर्नर से कर लेने कि सर्कल है तो कोई बाहरला पॉइंट है, तो सर्कल के बाहरले पॉइंट तो आप दो टेजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल के बाहरले पॉइंट तो बाहरले आउटसाइड पॉइंट तो आप तो किन्ने टेजेंट ड्रा कर सकते हैं, दो टेजेंट ड्रा कर सकते हैं। मान लो आ पी है, आ ए है, आ बी है, दो टेजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टेजेंट अपने की है इक्वल होंगे, दोनों टेजेंट की अपने इक्वल होंगे, यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह हुण आपां इहदा एक रिजल्ट होर भी है, देखो वैसे मोस्टली अपने चैप्टर के जो बेसिक रिजल्ट सिर्फ यही बनते हैं, सर्कल के कुछ बेसिक रिजल्ट आ रहे, सर्कल एंड टेजेंट के बेसिक रिजल्ट ये रहे, ठीक है। एक होर चीज़ देख लेने कि सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। सर्कल के अंदर कोई पैरेललोग्राम है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। बट जो कोई पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर बन जाए तो एक डायरैक्ट रिजल्ट है कि वो ए बी सी डी अपना की है रंबस हो जाती है, की डायरैक्ट ए बी सी डी अपना की बन जाती है, रंबस बन जाती है। कदों बन जाती है, जो सर्कल के अंदर की है पैरेललोग्राम हो, एक ये रिजल्ट भी याद रखना, ठीक है। सो ये सी अपनी बेसिक चैप्टर की इंट्रोडक्शन।
सो हम आप MCQ सॉल्व करके भी सवाल दे चैप्टर इस चैप्टर दे देखो बस 5 का अपने MCQ है। देखो कि फर्स्ट सम देखो अपना ये वाला ये पॉइंट P है इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O। ये कोई सर्कल अपना इस तरह है, ये सेंटर O है, इतने पॉइंट P है, ठीक है। 26 सेंटीमीटर है, सेंटर तो दूर है, क्या कहना 26 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल एंड द लेंथ ऑफ PT ऑफ द टेजेंट, ये कोई टेजेंट है, टेजेंट की वो लाइन जी सर्कल में टच करती है, मतलब आ वाली ये PT है, ठीक है। ड्रा फ्रॉम सर्कल इज 24, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस फाइंड करना है, मैं सर्कल के सेंटर तो लैके सर्कल के एंड तक कोई मर्जी लाइन ड्रा कर लो, वो की अपना रेडियस, बट आप इतों ही ड्रा करा ये रेडियस बनावे, ठीक है। मतलब आ चीज़ आप फाइंड करनी है। सो आप पहला भी गल कर चुके ना चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, देखो कि जिथे रेडियस ते टेजेंट दोनों मिल जाते की बन जाता एंगल बन जाता 90 डिग्री। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ MCQ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 90 डिग्री, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ट्रायंगल PTO बन गई अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। जे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई लगा दो पाइथागोरस थ्योरम H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H कितना 26 का स्क्वायर, P कितना 24 का स्क्वायर प्लस B², ठीक है। और 26 का स्क्वायर कितना देखो 26 ने करो 2 बारी मल्टीप्लाई 36 ठीक है 676 तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 20 का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर की वैल्यू कटो ये इधर के माइनस हो जाएगा 676 माइनस 576 इज इक्वल टू B²। सो इतने 100 आ जाएगा इज इक्वल टू B² है, स्क्वायर इधर के रूट हो जाएगा 100 का रूट कितना 10 होता है। सो बेस कितना 10 सेंटीमीटर, बेस किनू मन्निया रेडियस नू, सो रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी विच, ठीक है। तो ये अपना की है आंसर है। सैकेंड सम देखो अपना ये वाला की है कि टू पैरेलल लाइन टच द सर्कल, कि टू पैरेलल लाइन आर टेजेंट टच द सर्कल इफ इट इज एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस इज इक्वल टू। देखो सम इसकी डायग्राम किमें बननी है कि आप इधर देखो कि 2 पैरेलल टेजेंट है सर्कल के विच, ठीक है ये वाली। तो एक दा रिजल्ट होर भी अपना कर लेने रहिंदा करना कि वाला देख लो कि कोई सर्कल है तो सर्कल के जो कोई लाइन सर्कल में टच करती है वो टेजेंट बन जाती है ना। एक आप ये पढ़ लिया तो सर्कल को टेजेंट किन्ने होंगे इनफाइनाइट मैनी होंगे है, तो सर्कल को एक पॉइंट के किन्ने होंगे एक टेजेंट होंगे है ना एक पॉइंट के, ये भी पढ़ चुके हैं। एक होर चीज़ कि सर्कल के कोल एक पॉइंट के नंबर ऑफ पैरेलल टेजेंट किन्ने होंगे है, एक पॉइंट से किन्ने पैरेलल टेजेंट होंगे है, वो किन्ने 2 होंगे है। ये रिजल्ट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 किमें देखो हम आ पॉइंट से एक टेजेंट है, ये पैरेलल सिर्फ एक ही टेजेंट बनूगा, तो किन्ने हो गए 2 हो गए। एक पॉइंट से किसी एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से नंबर ऑफ टेजेंट किन्ने पैरेलल होंगे 2 होंगे, ठीक है। सो इतने भी लिख रखे हैं 2 पैरेलल लाइन्स आर टेजेंट टच द सर्कल, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम इस तरह बननी है और ये दोनों की पैरेलल टेजेंट है, तो आप हुण ਇਹਦਾ रेडियस फाइंड करना है, इन्होंने रेडियस। वैसे सिंपल सवाल हो जाए अपनों एरिया की होना सर्कल ना, सो एरिया की ना πr² इज इक्वल टू 25 पाई है ना, पाई ना पाई कैंसिल कर दो, r² कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है।
ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ रूट हो जाऊगा। सो आर की वैल्यू कितनी है 5 आ गई। सो रेडियस कितना 5 आ जाऊगा ऑप्शन ए। सो ये स्टेटमेंट थोड़ी होर चेंज हो सकती है, देखो ध्यान नाल। ये आ दे कि अपने कोल दो टेंजेंट है, दोनों की है पैरेलल है। एक एरिया अपन की है गिवन है कितना 25 पाई सेंटीमीटर स्केयर। आप फाइंड किया कि पहला रेडियस फाइंड किया, तो रेडियस फाइंड करके कितना आ गया 5 आ गया। हुण इहदे विचों क्वेश्चन एक होर ही बनता है कि डिस्टेंस बिटवीन टेजेंट्स, कि इन्हां दोनों टेजेंट का आपां डिस्टेंस फाइंड करना है। सेम अपन आही चीज़ गिवन है, इसी प्रोसैस नाल करांगे। ठीक है, देखो टेजेंट की है दोनों पैरेलल है, तो हुण इत्थे सेंटर है, सेंटर दे विचों एक लाइन पास करा दो आपां जिहड़ी इन्हां दोनों टेजेंट नूं टच करदी होवे ना, आ रही। तो ये बन गया अपना डायामीटर बन गया। सो डायामीटर अपना डिस्टेंस फाइंड करना है, इट मीन अपना डायामीटर फाइंड करना है। तो डायामीटर फाइंड करने का की फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस अपना फाइंड कर चुके हैं 2 × 5 10 आ गया। 10 सेंटीमीटर अपना की है, डायामीटर भी है एक हिसाब का। ठीक है, तो एक हिसाब का अपना की है डिस्टेंस बिटवीन वाला टेजेंट भी है। ठीक है, ये सवाल अपना इस तरह चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अपना ए सम सी इसका आंसर कितना 5 ऑप्शन ए आया। थर्ड MCQ देखो अपना ये कि ए लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ कंटैक्ट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। तो कोई सर्कल आ ते आ उस लाइन का ये लाइन पास कर दी है ना इतों, तो पासिंग थ्रू सेंटर है ना, मतलब आ कोई लाइन है तो यदा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट अपना आ रहा, इस लाइन का पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ रहा जोड़ा कि सेंटर विचों पास करता है। तो दसना आ लाइन की बन गई, इस लाइन पर की कहने हैं। ठीक है, आ कोई लाइन है तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ रहा जिथे लाइन तो सर्कल दोनों टच करते हैं, तो यह पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है सेंटर विचों पास करता है, आ सेंटर है। तो इस पूरी लाइन पर की कहने ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना है। सो देखो जो आपको ये बारे नहीं पता तो आप ऑप्शन के विचों ही सवाल सॉल्व कर लेने। टेजेंट की होंगी है वो लाइन जो सर्कल में किसी पॉइंट के उपर टच करे, ये होंगी है। कोड की होंगे कि वो लाइन जो सर्कल के अंदर हो बट सेंटर च पास ना करे। हाँ आ हो गया, आ कोई मर्जी। चलो ये बारे पता अपन ये बारे अपन नहीं पता ना मान लो, तो फिर सैगमेंट बारे अपन पता ही है। सैगमेंट की होंगे सर्कल के अंदर, सर्कल जो कोड ड्रा करते हैं, कोड के अंडर जो एरिया आता वाला पार्ट इनू कहते सैगमेंट। ठीक है, आ वाला भी अपना की है सैगमेंट ही है। हूँ जो आ सैगमेंट है इनू कहते माइनर सैगमेंट, आ जो बड़ा सारा इनू कहते मेजर सैगमेंट। ठीक है, बट हम गल हुई पासिंग थ्रू पॉइंट की, तो बची ऑप्शन सी, ये अपना की आंसर है। तो डेफिनेशन ये समझ के चलना है। ओके, सो देखो सम नंबर 4 कि सर्कल हैव नंबर ऑफ टेंजेंट, कि सर्कल कोल कितने टेंजेंट होंगे ये आप कर चुके हैं। इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट होंगे। सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये भी कर चुके हैं। किसी एक पॉइंट के कितने पैरेलल टेंजेंट होंगे, वो भी कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, तो हम आप लास्ट MCQ करते हैं। ये MCQ इंपॉर्टेंट है, तो ये शायद सवाल पेपर च भी आए हुए अपने। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। ये सर्कल का कोई रेडियस इस तरह, ठीक है इस तरह, ये बन गया 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कोड इज 10। तो लेंथ ऑफ कोड की कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट तो लैके दूजे पॉइंट तक मर्जी लाइन ड्रा कर लो, वो की है कोड होंगी अपनी। ठीक है, बट सेंटर च पास नहीं करवानी। ये अपनी की है कोड है AB, वो ये अपना की है रेडियस है। यदा मतलब AB कितना अपना 10 सेंटीमीटर है ना। तो फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर, मतलब इस कोड का सेंटर तो डिस्टेंस फाइंड करना पा जी आ वाला। ठीक है, आप पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आप स्टार्टिंग ही गल की ना कि जो कोड के उपर सेंटर तो लाइन ड्रा करते हो की है परपेंडिकुलर बन जाता है। सेम हम आ भी की बन गया परपेंडिकुलर बन गया। तो एक रिजल्ट आप आखते कि जो आ पॉइंट है M है ना, ये पूरी लाइन की बन जाऊगा मिड पॉइंट बन जाऊगा, की बन जाऊगा मिड पॉइंट। AB कितना 10 सेंटीमीटर, तो AM कितना रह जू अपना 5 सेंटीमीटर। तो AM भी 5 है, आ भी 5 है। तो ये 5 हो गया, आ परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर सामने अपना आ बन गया हाइपोटेनस।
ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀ, ਪੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਐਚ ਕਿੰਨਾ 13 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀ ਕਿੰਨਾ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਯਾਨੀ 13 ਸਕੇਅਰ 169 ਪੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 25 ਇੱਧਰ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ 144 ਇਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਸਕੇਅਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਛ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਜੋ MCQ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਲਏ। ਓਕੇ।